everyone present here. I feel privileged to extend my warm welcome to all of you present here on the first day of the international seminar on the topic New Frontiers in Chemical Science, organized by the Department of Chemistry, CM Science College, Darbhanga. A very special thanks to you all for gracing this special occasion with your esteemed presence. My name is Saima Naz and I am Aarti Kumari, and we are delighted to be your host for this event. इस शुभ अवसर की शुरुआत मैं अपने कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूँ। चलो अब हम ये आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतजार, चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Now, I would like to take this opportunity to welcome you all for gracing us with your esteemed presence. May I request Nidhi ma'am to kindly welcome the convener of our seminar, Dr. Vidit Patil sir. Please give them a very big round of applause. To all of you present here, today we are present here for the 2 days international seminar. Now I request our convener V.D. Tripathi sir to welcome our guest and VC sir and registrar sir and our chairperson principal sir to come on the dais and welcome to them. Thank you very much, ma'am. We are highly fortunate today that our Honorable VC sir has joined in the opening ceremony of this 2-day international seminar. I will start the seminar by welcoming our honorable guest. So in this sequence, the first I will request respected principal sir of CM Science College to please welcome Honorable Vice Chancellor sir by Pag, Chadar and Bouquet. May I call upon stage Dr. V.D. Tripathi sir to kindly welcome Professor Mushtaq Ahmed sir, Registrar of Lalit Narayan Mithila University. Please welcome them with a very big round of applause. May I invite Hassan sir to kindly welcome Professor Lal Mohan Jha, the guest of honor of this event. Please welcome them with a very big round of applause. May I again request Nidhi ma'am, our co-convener, to kindly welcome Professor Prem Mohan Mishra sir, who is the head of the Department Chemistry of Lalit Narayan Mithila University. Please welcome them with a very big round of applause. Now I request Neha ma'am to come on the stage to welcome Bhim Jha sir, who is on the stage. It is our honor that he present here. Neha ma'am from chemistry department, and we have 2 Neha, one from English department and one from the chemistry department, and one of the mathematics department, sorry. May I request Nidhi ma'am to kindly welcome the convener of our seminar, Dr. V.D. Tripathi sir. Please welcome them with a very big round of applause. Now I would like to take this opportunity to welcome you all for gracing us with your esteemed presence. May I request Nidhi ma'am to kindly welcome the convener of our seminar, Dr. V.D. Tripathi sir. Audiences are requested to please kindly clap your hands for all the guest presents. अब हम इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए अपने चारों ओर के अंधकार को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना में दीप प्रज्वलन समारोह का प्रारंभ चंद पंक्तियों के साथ करना चाहते हैं। मां शारदे को नमन कर हम आगाज करते हैं। चलो आज के इस सफर की हम शुरुआत करते हैं। मां वीणा वादनी का आज साथ रहेगा, मिलके सब हम चरणों में वंदन करते हैं। For this lamp lighting ceremony, I would like to call upon the stage all the respected dignitaries to come forward for kindling the light.
Audiences, please clap your hands. Please welcome them with a very कृपया तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, कृपया तालियां बजाते रहें। Thank you everyone. Today's event will start by convener's address. Dr. V.D. Tripathi sir, convener of the seminar, will elaborate us on the theme of this event and address the audiences and the dignitaries about the 2 days program. Please welcome him with a very big round of applause. Honorable Vice Chancellor sir, sitting on the stage, respected Principal sir, CM Science College, respected guest of honor, Professor Lal Mohan Jha, respected Professor B.N. Jha sir from Bihar University, Muzaffarpur, respected PG Head of Department, Professor Prem Mohan Mishra sir, respected teachers sitting in the audience, my colleagues and students. It gives me immense pleasure to welcome you all in this 2-day international seminar on the topic New Frontiers in Chemical Sciences, organized by Department of Chemistry, CM Science College, Darbhanga. At this time when our country is adding the shining stars on the globe every year by achieving new milestones in the form of innovation and discoveries. So I felt that why not to organize a seminar on these new achievements of country and the role of chemistry in the development of nation. In this regard, the theme of seminar was chosen as New Frontiers in Chemical Sciences. I am sure that the objective of organizing this seminar to bring the researcher and academicians at a common platform to sharing the ideas, sharing their knowledge in generation of new innovative ideas will be fulfilled. I am very sure that our visionary Honorable Vice Chancellor sir, respected Principal sir, all the dignitaries sitting on dais will be enjoyed this 2-day international seminar in very fulfilled manner. So my best wishes to you all, and let us enjoy the 2 days filled with ideas and innovation. Thank you very much. Thank you so much sir for your words. कभी कभी हजारों अच्छे पुराने यादों को वापस लाने के लिए केवल एक सुनहरे गीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे महाविद्यालय की कुछ छात्राएं अपने मधुर स्वर में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए कुल गीत गाने जा रही हैं। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। Please welcome them with a very big round of applause. महल परित्राता
साथ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी के साथ प्रबंधन, रंजन युग जल क्रीड़ा, विविध शास्त्र विषयादि सुशिक्षा, विविध शास्त्र विषयादि सुशिक्षा, विद्य जनित हर पीड़ा, मिथिला भरत भूमि भूमंडल, विश्रुत नव उद्गाता, ऊर्ध्वभाव घोषित सर्वोपरि, अभिनव मनुज विधाता, मिथिला मुदित महामणि मरमर, मूर्ति महल परित्राता, नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता, मिथिला मुदित महामणि मरमर, मूर्ति महल परित्राता। Big round of applause. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. As said by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon we can change the world. Now, the person who has consumed himself to change this society and lighten the darkness in the life of ever-present youth, the respected principal of CM Science College, Professor Dilip Kumar Chaudhary sir, is requested to come upon the stage and address the audience. Please welcome him with a very big round of applause. Now it is time for release of souvenir of seminar. I will request you all to please stand up for the release of seminar. Our respected guest on dais are releasing the souvenir of this seminar. आज के अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, कर्मठ कुल सचिव भाई मुश्ताक अहमद जी, हम लोगों के अभिभावक और इस महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर लाल मोहन झा जी, अभिभावक रसायन शास्त्र के ही बिहार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पी.एन. झा जी, हम लोगों के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पी.के. झा जी, इस महाविद्यालय के रसायन शास्त्र के सभी शिक्षकगण और अन्य विभागों के शिक्षकगण, सहभागी रसायन शास्त्र में इस इंटरनेशनल सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, आए हुए अतिथि शिक्षक एवं पत्रकार बंधुगण, मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बहुत लंबे अंतराल के बाद अभी हमने जंतु विभाग का एक सेमिनार यहाँ हुआ था। हम कुलपति के बहुत आभारी हैं कि आज वो पटना से चलकर जैसे ही अपने कार्यालय पहुँचे हैं और 5 मिनट के बाद इतने व्यस्तम कार्यक्रम कुल सचिव महोदय के साथ उनका था, लेकिन दोनों आदमी यहाँ अपनी महंती कृपा किए, इसमें आके बच्चों को और तमाम विभाग के हमारे कन्वेनर सभी शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए यहाँ पधारे। मैं पुनः दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी
बेहतर शुभकामना के लिए अपना शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष महोदय है, विनम्र अनुरोध है अपनी गरिमा वाणी से हम सभी को अनुप्रमाणित करने की कृपा करें। कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। Respected Honorable Vice Chancellor Sir, Professor S.P. Singh, my elder brother and ex-HOD Principal Dean of Science, Professor Lal Mohan Jha ji, ex-HOD Bihar University, Professor B.N. Jha sir, dynamic Registrar of Mithila University, Professor Musaq Ahmed sir, my younger brother and very dynamic principal of same Science College, Professor Dilip Kumar Chaudhary ji, and all the teachers of this college, convener of this seminar, Dr. Vedi Tripathi ji, all the faculty members of the department, all the teachers and non-teaching employees of this college who are engaged in this seminar, and my dear participants. Actually, I am delighted to see this crowd for such an academic program. I congratulate principal, the convener and all other members for organizing such an international seminar for 2 days. And I am very happy to know the theme of the seminar, that is New Frontiers in Chemistry. When we talk about new frontiers in chemistry, it means we are considering both the frontier. First frontier is the work is being done in the chemistry, or the planning which chemistry is doing to do some new synthesis, a new chemistry, new characterization, as well as we wish to consider the challenges before our chemistry research, challenges for our chemist, or challenges for our society in terms of chemistry. So topic is very well planned. I time and again thank the organizer for organizing seminar, and I'm sure the participants and other students of this college or this university will get benefited from the list of learned resource persons very meticulously chosen for delivering their lectures on the relevant topics. I would not like to take more time because you are going late. So I wish to hand over the mic to organizer. Thank you very much. I wish a grand success to this seminar. Thank you. Now, I would like to request Professor B.M. Jha sir from Bihar University to please come up on the stage and address the audience. Thank you so much, sir. Most esteemed Honorable Vice Chancellor Sahab, vibrant, dynamic and popular principal and convener of this seminar, Dilip Bhau, former chemistry head, Professor Jha, and present head, my friends and my students. It gives me immense pleasure to participate in this seminar
I am very much thankful to you all, particularly the organizing committee. The chapter of this seminar, the topic has been meticulously selected. I congratulate for this type of topic. Chemical science is actually a broad science. It has no limit. Chemistry is now the subject in which the chemists have the interest. When chemists are interested in learning history, it is called Hindu chemistry. If they are interested in learning health sciences, it is called medicinal chemistry. When they are interested in political science and other sociology, it is called social chemistry. So chemistry has changed its contour and dimension through onward march of the civilization. Now, the chemistry is a broad subject and we have to incorporate the view of all the chemists working anywhere in any field. So this topic gives them a great impetus to participate in the seminar. The time is not unlimited, the patience is not unlimited, tolerance is not unlimited. Therefore, finally, I wish all success to the seminar. It is two-day affair. Thank you for presence and hearing. प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ललित नारायण विद्या विश्वविद्यालय के वर्तमान कुल सचिव हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ उर्दू विषय के एक विख्यात विद्वान भी हैं। मैं आदरणीय कुल सचिव महोदय से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सबों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि ललित नारायण विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति जनाब प्रोफेसर SP सिंह साहब, मंच पर आसीन इसी महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य, हमारे विश्वविद्यालय के विभाग केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष डीन और मिथिलांचल में एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित प्रोफेसर लाल मोहन झा साहब, बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BN झा साहब, हमारे विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुरमन मिश्रा जी और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी जी, सेमिनार के संयोजक डॉक्टर त्रिपाठी, इस महाविद्यालय के सम्मानित सभी शिक्षकगण, सहयोगी कर्मी, छात्र छात्राओं, खास करके अभी मंच संचालन करने वाली शिक्षिकाएं और उद्घोषिकाएं, मीडिया के भाइयों, यह वर्ष बहुत पावन वर्ष है कि हम भारत के 75 आज़ादी के 75वें वर्ष में दाखिल हैं और अमृत वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वही ललित नारायण विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है
कि विश्वविद्यालय की स्थापना का 50वां वर्ष गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी सिंह साहब ने इस गोल्डन जुबली की तारीख में और 4 चांद लगा दिया है कि न केवल विश्वविद्यालय परिसर बल्कि हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हमारे, वहाँ 1 महीने से तरह तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय को भारतीय विश्वविद्यालय का जो संघ है उसकी गवर्निंग बॉडी में भी शामिल किया गया है। तो आप सबों की तरफ से माननीय कुलपति महोदय को मुबारकबाद पेश करता हूं इस अवसर पर कि आपके कारण मिथिला विश्वविद्यालय को गौरव मिला है। ये विषय बहुत ही, जैसा कि प्रेम मोहन मिश्रा साहब, एन झा साहब और संयोजक त्रिपाठी साहब हमारे इसी विषय के क्योंकि प्राध्यापक हैं, प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी साहब ने कहा, मैं कभी साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, साहित्य का छात्र रहा और साहित्य के माध्यम से अन्य विषयों को समझता रहा। आप जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दुनिया में पहली बार इसका नाम अरबी के साइंसदानों ने अल्कीमिया रखा और उसी से अल्कीमिया से अल्केमिस्ट्रीज रोमन में गया, इसका इतिहास है। और अल्कीमिया माने कीमिया के माने होता है जो हालत को बदल दे, जो किसी चीज में तब्दीली ला दे, चाहे वो पदार्थ द्रव्य हो, ठोस हो, उसकी कैफियत बदल दे। तो कैफियत बदलने का नाम अल्कीमिया है, केमिस्ट्री है। प्रेम मोहन मिश्रा जी कह रहे थे कि अब तक जो काम हुआ है, जो होने वाला है और समाज के सामने चैलेंजेज हैं, जाहिर है कि बदलते परिवेश में, बदलती दुनिया में अगर आप खुद को ना बदलेंगे तो आप उसके साथ नहीं चल सकते, चाहे वो किसी विषय के हो। इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, फ्रीडम फाइटर अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम सुना होगा, मौलाना थे वो, मौलाना के नाम से होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पहला बार जब वो कन्वोकेशन में गए थे वो अलीगढ़, तो उन्होंने कहा था कि आप दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपने खुद को बदलने में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर आपके अंदर वो ताकत होगी कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल खुद को बदलने का है। सीएम साइंस कॉलेज मिथिलांचल के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिक्षकों की कमी थी। माननीय कुलपति महोदय ने प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के शिक्षकों की कमी को दूर की है। प्रधानाचार्य महोदय ने जिन जिन विषयों को की सूची थमाई विश्वविद्यालय को, उन्होंने विश्वविद्यालय ने प्रयास किया कि अच्छे शिक्षकों को साइंस के, क्योंकि हम सभी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को हम मॉडल नहीं बना सकते, लेकिन हमारे हाथ में है कि 2-4 कॉलेजों को विश्वविद्यालय का मॉडल हम बना सकते हैं। और जो पहले हमारा मॉडल रहा है उसको मॉडल बनाने में बहुत आसानी है। इसलिए जो शिक्षक यहाँ आए हैं नए, गेस्ट टीचर के रूप में आप आए हैं या पहले से शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। क्योंकि कल प्रधानाचार्य महोदय को ये रास्ता था कि वो कहते थे कि शिक्षक की कमी है, अब आपके पास ये रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि माननीय कुलपति महोदय ने सारे शिक्षकों को यहाँ भर दिया। अब आप शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आप सीएम साइंस कॉलेज के छात्र कहीं बाहर ये न कहें कि हमारा क्लास नहीं हुआ, या फिर साइंस का ये कॉलेज है तो प्रैक्टिकल क्लास नहीं हुए। ये कॉलेज कैंपस से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। ये केमिस्ट्री से बड़ा चैलेंज आपके लिए ये केमिस्ट्री है।
यदि आप इसे पूरा करते हैं तो ये सेमिनार सिम्पोजियम्स की अहमियत बढ़ेगी। जो मूल काम है बदलने का, जो केमिस्ट्री का काम है, अल्कीमिया का काम है, अगर आप वो करते हैं तो न केवल सीएम साइंस कॉलेज की वो गरिमा स्थापित होगी, बल्कि मिथिला विश्वविद्यालय को ये गौरव प्राप्त होगा कि हमने भाई दिलीप कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में एक मॉडल कॉलेज स्थापित किया है। हम चाहते हैं कि राज्य में हम अपने को स्थापित कर सकें, इसके लिए हम आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और यह सेमिनार अपने विषयों पर 2 दिवसीय चर्चा के बाद जो मूल्यांकन आप करेंगे, मैं समझता हूँ उसका भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और चूँकि ऑनलाइन भी ये कार्यक्रम हो रहा है, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रसारण हो रहा है। इसके बाद जो आलेख पढ़े जाएंगे उससे न केवल मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं अन्य, वो भी लाभान्वित होंगे। आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया, आपके प्रति आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने आप को आपके बीच पाके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण सर की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। प्रोफेसर लाल मोहन झा भूतपूर्व रसायन शास्त्र विभाग भागाध्यक्ष एवं हमारे चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। इनकी छवि एक कर्मठ प्रशासक एवं विद्वत रसायनविद के रूप में हमेशा रही है। आदरणीय प्रोफेसर लाल मोहन झा सर से अनुरोध है कि वे मंच पर अपने शब्दों से हमें सबको अभिभूत करें। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Honorable Vice Chancellor Sir, respected Dr. Mustar Sahab, respected Dr. Mustar Sahab, and I take this opportunity to inform you and feel privileged that he is my villager also. We are from the same village. Dr. Dilip ji, my younger brother and my colleague and a dynamic leader who is the organizer of this function, this seminar. My friend Bodh Babu, ex-head of the department with BR University, Muzaffarpur. My younger brother Prem Mohan ji, head of the department of Chemistry, Mithila University. Honorable my dear friends, teachers of the college and my dearest students. Actually, I am feeling nostalgic. I have been serving this college. I served this college for 38 years. I joined in 1975 and retired from here in 2013. For 2-3 years I was in the University Department of Chemistry as head and in WIT as director. But coming to this college is like homecoming. But as the topic of your seminar is the new frontiers of chemical sciences, so everywhere the changes are taking place. Chemistry or any branch of science cannot remain stagnant. It has to be dynamic. It has to extend its frontier. While I was here, actually, one thing which I very intensely felt, seeing the condition that students are not coming to college, I felt that I have to do something. And one thing which I learned, that students are not very much motivated, they are demotivated. They don't want to come to college. But when we talked to some students,
our teachers talked to some students. Those students with whom we had a debate or we had a chat or we could counsel them, they started coming to the college. And then at that time, some of our colleagues, they got a sponsorship from UGC for doing research. I also got one research project, and the topic of my research paper was the chemistry involved in motivation. The chemistry of motivation. I could not finish it, and I had to return part of the money to college because before I could complete the project I retired. But I feel that as Mohan said, as Mustaq Sir has said, or Bhulbabu has said, that all our science endeavors have to be socially relevant. They have to address the problems of the society. And before going to the larger section of the society, we have to concentrate or we have to focus on our students. Can chemistry help them, our students? What are our problems? As Sir has said, that our Honorable Vice Chancellor, under whose dynamic leadership the university is changing, the shortcomings are being addressed and they are being removed. Teachers are now, I see so many new faces. They have joined the college, except for Ashok, I don't find that there are, and Sir, physics. I don't find that anybody from my time is there. So changes are there, but I feel that yes, coordination chemistry is important, organic chemistry is important, so many things are heterocyclic compounds, so many things you are doing research. I have just seen the seminar paper or the research booklet. There are many research papers published. Can we consider that our chemistry or our researches in chemistry are oriented in such a way that the immediate problem which we are facing as teachers in our college or in university, can we address that? Because as Sir said, that two essential ingredients of higher education is teaching and research. We can't leave teaching, we can't leave research. We have to go with both. So the recipients, the students, the donors are ready, the recipients are not available. So let us think about that. Can we explore some new ideas? Can we extend the frontiers in that direction? And I wish you all the grand success for this seminar, and especially Dilip ji, the organizer, Tripathi ji, and the dynamic teachers of chemistry department and the college. I wish you all success and hope such programs will be, such seminars, such symposia will be conducted in future, and that will be organized in a great way, and science college will have its own glory which it had in the past. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind, encouraging and enlightening words. Visionary, dynamic and multi-dimensional thinker who led Lalit Narayan Mithila University to greater heights and made this university one of the topmost university of Bihar. With these words, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor S.P. Singh, to address the audience. Please welcome them with a very big round of applause. मंच पर बैठे हुए इस महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और डीन, जिसको अभी हम सब ने सुना, प्रोफेसर लाल मोहन झा साहब, बिहार विश्वविद्यालय में सेवा दे चुके प्रोफेसर बी.एन. झा साहब, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव
प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, इस महाविद्यालय के तेजस्वी ओजस्वी प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप चौधरी साहब, लखनऊ विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड प्रेम मोहन मिश्र साहब, सामने बैठे हुए महाविद्यालय के बहुत सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ प्राध्यापक साथी, इस इंटरनेशनल सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स, डेलीगेट्स, एक अच्छे महाविद्यालय के विद्यार्थीगण, मीडिया के साथी, जो विषय आज आपने इंटरनेशनल सेमिनार के लिए रखा है वो लिखने में, समझने में, पढ़ने में, सोचने में बहुत साधारण सा शब्द है, न्यू फ्रंटियर्स। बहुत साधारण सा छोटा शब्द है, इसका अपने आप में कुछ अर्थ नहीं होता। ये अर्थ गंभीरता को तब लेता है, उस सोच तक तब पहुंचता है जब कुछ परिवर्तन की लालसा हम में हो, आप में हो, रिसर्चर में हो, कैंडिडेट्स में। अगर परिवर्तन की कोई लालसा हम में नहीं है, बदलाव के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, बदलाव के बिंदुओं को तलाशना नहीं चाहते हैं, उस पर चिंतन नहीं करना चाहते हैं, उसका मनन नहीं करना चाहते हैं, उसका समाधान ढूंढना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए इस शब्द का कोई महत्व नहीं है। न्यू फ्रंटियर्स हमेशा आते रहेंगे, हर युग में आएंगे, हर दिन आएंगे, हर मोमेंट पे आएंगे, कोई मतलब नहीं अगर आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। भारतीय दर्शन में ऋषि और मुनि दो तरह के कॉन्सेप्ट थे, कुछ विषयों को खोजते थे और कुछ विषयों पर चिंतन करते थे। उस विषय पर एक मीमांसा लेते थे, कैसे ये विषय आगे जाए, कैसे ये विषय आगे बढ़े, कैसे इस पर गतिशीलता है, क्योंकि बिना डायनेमिक के, गतिशीलता के कोई चीज माने नहीं रखती। आज जो चीज है वो 1 मिनट बाद जो आपने पीछे कहा वो पास्ट हो जाएगा। आज की तारीख बदलते ही, कैलेंडर की डेट बदलते ही जो कुछ हमने कल किया था वो पास्ट हो गया, हिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। वो अच्छी हिस्ट्री है या बुरी हिस्ट्री है, जब कभी इसकी मीमांसा करेंगे, इस विषय पर चिंतन करेंगे, तब आप इस पर समझेंगे, इस इशू को समझेंगे। मैनेजमेंट का एक जनरल प्रिंसिपल है जो इंडिविजुअल पर भी लागू होता है, इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होता है, कहीं भी लागू होता है, शिक्षण संस्थानों में लागू होता है, कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। एक जनरल टूल है। वो टूल अगर आप यूज करते हैं कभी, तो जाहिर सी बात है आपको फ्रंटियर्स मिलेंगे, आप रजिस्टर्ड करेंगे। आप नैक भी कराते हैं तो उस टूल के बारे में आपसे लिखाया जाता है, और उस टूल का नाम है SWOT, SWOT। जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए थ्रेट्स क्या है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। नाम बदल गया, ये जो थ्रेट्स था सुनने समझने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे C में कन्वर्ट कर दिया गया और ये SWOT में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज, ये फ्रंटियर्स चैलेंज है। चैलेंज सब नहीं बनता है, चैलेंज वो बनता है जिसे आपने स्वीकार किया। आपको अगर कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई इशू जनरेट करना चाहेंगे, क्रिएट करना चाहेंगे, स्टैब्लिश करना चाहेंगे, तो आपको अपनी वीकनेस देखना होगा, अपनी स्ट्रेंथ आपको देखनी होगी कि इस नदी को हम पार करना चाहते हैं तो हमें तैरना आता या नहीं आता है, इस नदी की गहराई कितनी है ये भी आपको जानना होगा, इसका फ्लो कितना है, कितना पावर है इसके फ्लो में, ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा, तब आप नदी में जंप करेंगे और तभी सक्सेस होंगे, नहीं तो नीचे उतर जाएंगे उसमें। ये जो SWOT है ये हर किसी के लिए, हर इंस्टीट्यूशन के लिए है, किसी के लिए भी जो थोड़ा सा रैशनल बिहेवियर करता है। रैशनल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जो होना चाहिए, आइडियल एस्पेक्ट है,
वो आपके सामने कोई आइडियल है और आप उसको वेलफेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो बिहेवियर, ये न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा भी है, वो बिहेवियर जो आपको पॉजिटिविटी ना दे, आपके साथियों को खुशी ना दे, आपके इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट ना दे, वो रैशनल नहीं हो सकता। ये पूरा भारतीय दर्शन है। वो बिहेवियर जो आपको पॉजिटिविटी दे सकता है वही रैशनल हो सकता है, वही आपको आगे ले जा सकता है, वही आपको रास्ता बता सकता है। बहुत मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, बहुत लोगों का जीवन के बारे में कोट किया जाता है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचे तो मंजिल बदल दे। अगर आप चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई गोल आपके पास होगा, कोई ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा, कोई पैशन आपके पास होगा। और अगर गोल तक आप पहुंच गए तो क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। इस कॉलेज को नैक का ए ग्रेड मिला है, तो ए मिलने के बाद आप विश्राम पे चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और होता यही है, नैक का मूल्यांकन, उसमें जो डाटा फीड किया जाता है पिछले 5 वर्षों का किया जाता है। अब दिलीप साहब जब इस डाटा को फीड करेंगे, आप नैक के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, तो दिलीप साहब के पास अपना डाटा 6 महीने का होगा और 4.5 साल का डाटा, पता नहीं 1 प्रिंसिपल का है या 2 प्रिंसिपल का है या 3 का है, मुझे नहीं पता, जितने होंगे। तो जो अचीवमेंट आज इसको नैक का मिलेगा, वो दिलीप साहब के काम का बहुत थोड़ा हिस्सा होगा, लेकिन पिछले साथियों ने जो किया है उसका ज्यादा हिस्सा होगा, डाटा वहां से ट्रांसफर होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी नैक लिया है अपने पिछले 1 महीने में, A++ उसको मिला, प्लस नहीं, A++ लिया, प्लस लिया। और जिस वाइस चांसलर के काल में हुआ उसका कुल कोरोना का 1 साल और डाटा सबमिट करने का 3 महीना, यानी मीनिंग देयर बाय उस वाइस चांसलर का कोई काम उसमें नहीं है। केवल 3 साल में हमने जो काम किया, उसके पहले कभी 20 से ऊपर नहीं जा पाई थी यूनिवर्सिटी। 3 साल में हमने जो काम किया वो डाटा भरने को मिल गया आने वाले सक्सेसर, और नाम सक्सेसर का होगा। तो अगर आप इस नियत से करना चाहते हैं कि आप ही को फल मिले, तो नियत छोटी हो जाएगी, संस्था के लिए छोटा काम होगा। इसलिए नैक तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है जो निकल करके आए एनालिसिस से। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज कहीं ढूंढना नहीं है। कहीं पढ़ा था मैंने, किसी विद्वान का वक्तव्य था कि कोई समय बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपके देखने का जो अंदाज है, उसे डील का जो अंदाज है, बिहेवियर है, रास्ता है, सन है, वो नजरिया आपका माने रहे, प्रॉब्लम छोटी है, प्रॉब्लम बड़ी है। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटा समझते हैं तो कुछ नहीं है, और छोटी प्रॉब्लम बड़ा समझ लीजिए तो बहुत कुछ है। शास्त्रों में एक जगह ऐसी चर्चा है, संस्कृत का श्लोक है वो पूरा, मुझे संस्कृत का श्लोक नहीं याद है। व्यक्ति 2 तरह के होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो अपने गुणों को बेल के समान देखते हैं, बड़ी साइज का देखते हैं, खरबूजे के रूप में देखते हैं, और दूसरे के गुणों को मटर के दाने के बराबर देखते हैं। ये अप्रोच है आपकी, कि अगर आप दूसरे के दोष को बहुत बढ़ा के देखेंगे, अपने दोष को मटर के बराबर देखेंगे, या दूसरे के कामों को मटर के बराबर देखेंगे, और उसके गुणों को आप अवगुणों को बेल के बराबर देखेंगे, तो ये नजरिया आपका है डिस्कशन करने का, सोचने का, समझने का। ये आपके इंटायर व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप याद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब भी कभी भाषण देते हैं, तो ये जो चारों हमने आपको बताया है,
इसमें एक समस्या और दूसरा समाधान है। इसी 4 शब्दों में समस्या भी है और 4 शब्दों में समाधान भी है। जो चैलेंज आपका है उसे जब आप अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हैं तो एक बड़ा असेट आपका क्रिएट होता है। और यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो आपदा है उस आपदा को अवसर में बदल दीजिए। अवसर में बदलना तो आपका काम है। जो भी आपदा आपके पास है, चैलेंजेस है, तो चैलेंज जो है हम वही देख रहे हैं, लेकिन चैलेंज आगे क्या होंगे वो नहीं देख रहे हैं। तो पूरे चैलेंज की एनालिसिस जब आप करेंगे, जो भी चैलेंज आपके पास हैं, उसका आप पोस्टमार्टम करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, तो वो आप चैलेंज को अवसर में बदल देंगे, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। आपकी वीकनेस, अगर आपके पास ये ताकत है, वीकनेस को आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके तो कोई समस्या आपके पास नहीं है। ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत मायने रखता है और इनफैक्ट यही मायने रखता है। ये जो काम यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप साहब के नेतृत्व में, शायद मेरी 4थी बार में आया हूँ या तीसरी बार आया हूँ, लगातार इस कॉलेज में आया हूँ। ये जो चैलेंज स्वीकार करना, अगर आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप चैलेंज को ढूंढ ढूंढ करके एक्सेप्ट करते हैं। एक तो ये तरीका हुआ जो आया उसी को हम स्वीकार कर रहे हैं, उसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा ये आने वाले 10 वर्ष बाद क्या होगा उसको भी ले आओ, 15 वर्ष बाद क्या होगा उसे भी ले आओ। सबको ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके आप जब विजय हासिल करेंगे तो आपके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी, कोई चीज दूर नहीं होगी, कोई प्लानिंग दूर नहीं होगी। जैसे देखिए क्लासरूम का लेक्चर, 3-4 स्टेजेस है पढ़ाई की। आप सभी टीचर्स हैं, टीचर्स पर ये ज्यादा लागू होगा। विद्यार्थी अभी वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, उनका दूसरा क्रम होगा। जब हम किसी चैप्टर को कल पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और विद्यार्थी उस चैप्टर को इम्तिहान देने के लिए पढ़ता, 20 बार पढ़ चुका होगा और कल इम्तिहान है, आज पढ़ रहा होगा। अध्यापक के रूप में जब हमने क्लास में पढ़ा, विद्यार्थी थे तो कुछ और पढ़ा। इम्तिहान आ गया है इसलिए जितना पढ़ा सब याद हो गया होगा और ज्यादा पढ़ा। और लेक्चर क्लास में डिलीवर करना हुआ तो उसी चैप्टर को पढ़ने का अंदाज दूसरा होगा। चैप्टर वही है, विषय वही है, आपका अंदाज दूसरा होगा। और जब कभी ऐसी जगह पर आपको जाना होगा जहां उस विषय के जानकार आपसे और ज्यादा विद्वान होंगे तो आपके पढ़ने का अंदाज कुछ और होगा। ये परिस्थितियां आपके उस दिशा को बदल देती हैं, माहौल आपकी दिशा को बदल देता है। उसी चैप्टर को 5 बार हम पढ़ते नहीं याद होता, लेकिन कल इम्तिहान है तो आज याद हो जाता है। कुछ नहीं है, कोई उसमें जादू नहीं है, लेकिन बड़ा भारी जादू हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी मंथन कीजिए तो समझ में आ जाएगा आपके कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ साथी ऐसे भी इम्तिहान देते हैं विद्यार्थी कि जो सब पढ़ करके गए हैं, सब याद है, और जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सब भूल जाते हैं कहाँ याद था कहाँ याद नहीं था। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है, पढ़ लिया कुछ याद नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, वो पर्चा सामने आएगा तो उन्हें सब याद आ जाएगा। ये क्या है? कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। आपको चीजों को समझने की जो ताकत भगवान ने दी है, उसे आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ाएं, घटाना चाहें तो घटा दें। ये आपकी अपनी ताकत है। जाहिर सी बात है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये हमें मजबूत बनाती हैं, संघर्ष करने की क्षमता देती है, चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता देती है। तो जब हम हरदम नई मंजिल की तलाश करेंगे तो ये फ्रंटियर्स ना पुराना होगा ना नया होगा, कुछ नहीं होगा। आया और हमने देख लिया, उसको समझ लिया और इलाज कर दिया। ये जो परसेप्शन है, ये जो पावर है, ये जो चैलेंज को स्वीकार करने की लोगों की आदत है, ये चीज़ों को बदल देती है, उसके माने बदल देती, उसका
प्रोस्पेक्टस बदल देती, सब स्पेक्ट्रम बदल देती, सब बदल देती, कुछ नहीं रहता उसके साथ। तो जब भी आप चिंतन करें, काम करें, न्यू फ्रंटियर्स की तलाश करें, तो एक तलाशने के बाद बंद मत कीजिए, क्योंकि 1 घंटे बाद जो आज नया आपने खोजा 1 घंटे बाद पुराना हो जाएगा या सेकंड बाद पुराना हो जाएगा। तो हमेशा कोई और नया आ जाएगा, फिर और कोई नया आ जाएगा। ये तभी होगा जब आप खुले मन से इस स्वाग के जरिए अपनी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। मैं समझता हूँ बेहतरीन कॉलेज है ये, और जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें आपकी मेरिट और आपकी चॉइस से अलॉटमेंट होता है। तो जितने एप्लीकेंट होंगे, अगर 2 लाख एप्लीकेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रहे पर्टिकुलर कोर्स के, तो आपके पास अगर 400 सीट होगी तो ये 400 2 लाख में से आएंगे, बहुत मेरिटोरियस होंगे आप। यूनिवर्सिटी एडमिशन में बेईमानी नहीं करती है और नहीं पता क्या होता है, कापी जांचने में तो भाई लोग करते हैं, लेकिन एडमिशन में कोई बेईमानी नहीं। जिसकी मेरिट है, जिसकी चॉइस वहां पहुंच गया, ऑटो मोड में पहुंच गया वो। तो आपको अपनी चॉइस का कॉलेज मिला, आपको अपनी चॉइस की व्यवस्था मिली। जाहिर सी बात है कि एक रिलेशनशिप होता है इंस्टीट्यूशन के साथ। आप विद्यार्थी हैं, आप इसके अल्मा मेटर बनेंगे, अलमनाई बनेंगे, इसके ध्वज को, इसकी पताका को, इसके यश के, इसकी कीर्ति को अपने साथ लेकर के चलेंगे। आप जहां जाएंगे गर्व होगा कि मेरा विद्यार्थी है, हमने उस कॉलेज से पढ़ा। एक रिश्ता होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट का एक रिश्ता होता है। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। 90 में मैंने प्रिंसिपल के रूप में आयोग से चयनित होने के बाद लखनऊ के एक कॉलेज को ज्वाइन किया, नेशनल कॉलेज में। मैंने लखनऊ में ही पढ़ाई की, वहीं रहता रहा पीछे के वर्षों में, लेकिन प्रिंसिपल सेलेक्ट होने के बाद उस कॉलेज को नहीं जानता था कहाँ है, नहीं जानता था कॉलेज कहाँ पर है, क्योंकि जानने लायक था ही नहीं। उसका तो और गिरीश साहब ने तो छोटा तालाब दिखाया, तो पूरा कॉलेज तालाब में था। और बरसात होती थी तो उसमें पीले वाले मेढक निकल आते थे, तो अपना जो कुछ गाना बजाना उनका चलता रहता था। उस कॉलेज में पीने का पानी नहीं था, हैंडपंप नहीं था, बिजली नहीं थी। लखनऊ में राजधानी के करीब विधानसभा से 2 किलोमीटर पे कॉलेज है वो, और हजरतगंज जो वहाँ की मार्केट सबसे शान मानी जाती है उसके बगल में। उसका पता लोग बताते थे कि ये जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे सीधे चले जाइए फिर आपको मिलेगा। उसका पता बताते थे, उसके सामने एक आरिफ होटल है, आरिफ कैसल करके था, उस होटल के सामने का। सच मानिए पूरे कार्यकाल में अब वहां क्या बदलाव हुआ है। मैंने डेमन कहा था कि ये नेशनल कॉलेज के नाम से दूसरे जाने जाएं, हमें बोटेनिकल गार्डन और कैसल से नहीं जाना जाना चाहिए। और जब उसके परिवर्तन की लहर स्टार्ट हुई, बदला, तो अब जितना वहां बैनर पोस्टर इस इंटायर रोड पर है वो सब लिखते हैं नेशनल कॉलेज के करीब। एड्रेस बदल गया, डेस्टिनेशन बदल गया, सब लिखने लगे कि हमारा ये हॉस्पिटल या हमारा ये जो भी है होटल या जो भी है वो नेशनल कॉलेज के सामने। ये लैंडमार्क चेंज है, ये परसेप्शन की चेंज है जो NIRF रैंकिंग में 50 नंबर का होता है। परसेप्शन बदल देगा, ये चेंज है कि आपसे जाना जाए, जो विद्यार्थी हैं उनसे जाना जाए कि ये CM कॉलेज है, CM साइंस कॉलेज है। इस भावना के साथ, इस ऊर्जा के साथ अगर आप काम करते हैं तो एक दो नहीं, जितने सारे फ्रंट्स हों सारे फ्रंट्स खत्म हो जाएंगे। सबको आप रिजॉल्व कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एकदम सब बदल जाएगा। आज आपने मुझे आमंत्रित किया इस नेशनल सेमिनार में, सम्मान दिया, उसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य और इस सेमिनार का ऑर्गेनाइज करने वाली पूरी टीम के प्रति साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सेमिनार और सुंदर हो और अच्छा हो, आपके लिए चुनौतियाँ रोज खुलती जाएं और ताकत आपके पास हो, चुनौती को ढूंढें। आई उसे नहीं आ तो आई जाएगी, ढूंढें, दूर तक निपटा दें उसको, दूर से ही गिरा दें।
इन शब्दों के साथ मंगल कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you amongst us today. Now, I would like to request Dr. Arika ma'am to please come up on this stage to give vote of thanks. Please welcome her with a big round of applause. Good morning, all of you. I, Dr. Arika Paul, on behalf of CM Science College and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my college, I extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Vice Chancellor, S.P. Singh Sir, our Honorable Registrar Sir, our Guest of Honor, Lal Mohan Jha Sir, Retired Professor B.M. Jha Sir from B.R. Bihar University, Head of the Department Chemistry, Lalit Narayan Mithila University, Prem Mohan Mishra Sir, Chairperson Principal Sir, Dilip Kumar Chaudhary Sir, Convener Vidhi Tripathi Sir, Co-Convener Nidhi Ma'am, and entire Faculty of Chemistry Department of CM Science and Faculty of CM Science College, who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinion today. Before moving towards the end of the program, I would like to mention a fact that an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It required planning and bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very productive and dedicated staff of our college who are well versed in their job. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort. A special mention to our respected principal, Dilip Kumar Chaudhary sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength with a deep sense of appreciation. We thank our loving teachers for their untiring efforts. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this day memorable. Thank you so much. डाई आइसोप्रोपाइल ईथर मिला है, तो एनएमआर का डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं, केवल नंबर ऑफ पीक्स जान करके आप बता सकते हैं कि वो डाई एन प्रोपाइल ईथर है या डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है। उसी तरह से आप किसी भी एस्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड हैलाइड में, सब में डिस्टिंक्शन इसी बेसिस पर कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले, बस अब कंक्लूड कर रहे हैं एक मिनट, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि OH का, आइसोलेटेड OH का जो पीक है वो 3500-3600 सेंटीमीटर IRP 3500-3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इस पीक में क्या अंतर आएगा, क्या इफेक्ट आएगा? बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। ब्रॉड हो जाएगा और क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी घटेगी। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड जब हो गया तो ओरिजिनल बॉन्ड वीकेंड हो गया ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने हुक्स लॉ के आधार पर बताया था कि जब बॉन्ड वीक होता है तो फोर्स कांस्टेंट F घटता है, F घटता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। इधर लोअर फ्रीक्वेंसी पर पीक मिलेगा और ब्रॉड पीक मिलेगा। अब आखिरी सवाल करके हम छोड़ देते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आपको शक है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
तो कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा IR के बेसिस पर? कोई भी एनीबॉडी? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप आगे आइए, यहाँ आइए। कहाँ के स्टूडेंट हैं? PG, कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा? हैं? नहीं, एक और बात है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। बस 1 मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं, डोंट वरी, हमको समय का एहसास है। अब मेरा लेक्चर सब पसंद कर रहा होगा तो बस आधा मिनट लगेगा। सॉल्वेंट अगर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएगा, मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट हुआ था IR पर वो घटता जाएगा। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो डाइल्यूशन अगर बढ़ा भी रहे हैं, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा भी रहे हैं, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी जगह पर रहेगा, इसलिए कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरह से ठीक है, थैंक यू। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम मॉलिक्यूल के कैरेक्टराइजेशन कैसे कर पाते हैं, ये नट शेल में इंटायर हमने बताने की कोशिश किया है। आई होप आई हैव नॉट टेकन, कितना त्रिपाठी जी कितना देर लिया हमने, कितना टाइम लिया? नॉट मोर देन हाफ एन आवर का तो टाइम। अब दूसरे वाले ने इतना देर कर दिया तो हम क्या करें, हम तो आधा ही घंटा लिए हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।